Okay, good afternoon again. So we are going to start with the revision process again. So we were doing NetBeans in Java, where we practice some of the questions that usually come in the exams, right? So let's do some more practice, and I'll just give you some more questions today to revise. And first of all, we'll do the revision of that NetBeans topic, and then we'll come up to MySQL. Fine. I'll just share the question paper that we were discussing. Okay, that's it. This is the question. Identify the odd one out of the following statement and state a reason for the choice. Now, if we look over here, we have four different options, and all these are your conditional looping statements. Switch case is there, do while is there, while is there, and for. Out of these four, if you see, for is used as an iteration statement, a looping statement है इसमें. When condition is true, it executes the statements inside the block. Then again it checks the conditions, and if it is again true, it keeps on doing it. So the loop keeps on working till the condition is false. Similarly, in case of while also, we check the condition, and if condition is true, then we'll again start executing the same statement again and again. तो इसमें भी लूप चलता रहेगा. डू वाइल के केस में भी ऐसे ही है. कंडीशन ट्रू होने पे वी कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग दोस फाइल्स अगेन एंड अगेन टिल द कंडीशन इज फॉल्स. जबकि स्विच में क्या होता है कि स्विच में व्हाटएवर वेरिएबल इज गिवन इन द स्विच स्टेटमेंट, वी कंपेयर इट विद द केस वैल्यूज. जिस केस के साथ मैच हो गया उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, और वहां पे ब्रेक है तो ब्रेक कर देना है. नथिंग एल्स इज डन. इसमें रेपिटेशन नहीं है. दिस इज नॉट आइटरेशन स्टेटमेंट, इट इज सिंपल सीक्वेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, इसमें सिंपल एक बार एग्जीक्यूट होगा, सीक्वेंस खत्म हो गया, दैट्स इट, द लूप ऑन द ब्लॉक विल टर्मिनेट. और इन तीनों में लूपिंग होती है, इन तीनों में आइटरेशंस होती हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो बार बार उन कंडीशन स्टेटमेंट्स को जो उसके ब्लॉक के अंदर हैं उनको बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा. So switch is the odd one out of these four, right? So the reason you can give that in all these three statements, these three are iteration statements where till the condition is false, the statements are executed again and again. And in case of which switch is a selection statement where it matches the switch variable given in the switch statement with the case value. And if the case value is matched, then the statements are executed only once, not more than that. Fine. So that's the difference. Difference between set, visible, enable. This we have to cover up yet, so we will not touch this. इसके बाद, what is the difference between the following statements 1 and 2? First one is a is equal to 5. Second one is a equal to 5 with an if, and x is equal to 3. Now the basic difference is a equal to 5 or a equal to 5 में क्या difference है? This we have discussed earlier also. Okay. Single equal to means it's a assignment operator which assigns a value to a variable, and the double equal to is the comparison operator which compares the value of this variable a with 5 whether the value is equal to 5 or not. ठीक है, यहाँ पे comparison होगा दोनों चीजों के बीच में, वेरिएबल और वैल्यू के बीच में. यहाँ पे हम इस वैल्यू को इस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, दैट्स इट. ठीक है, तो द बेसिक डिफरेंस वी नीड टू टेल इज दिस इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू. तो इफ इसमें इफ भी है बिकॉज कंपैरिजन कैन ओनली बी डन इन इफ स्टेटमेंट्स. सो इफ कंपैरिजन इज ट्रू देन x विल बी 3, अदरवाइज x will not be 3. फाइन. तो हमें यहाँ पे ये दोनों एक्सप्लेन करने हैं, इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू.
Coming to next question type, इसमें है find the output on this JText field 1 if DEP code is 3. If this variable has value 3, what will be the output? What will be the printed? What value will be printed in this text field 1? तो ये हम कैसे करते हैं? टेक्स्ट फील्ड जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू को केस की वैल्यू के साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पे 3 है DEP कोड की वैल्यू, तो केस 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 is also not there. This value is not matching with any of the case. जब वैल्यू मैच नहीं करती है तब ये डिफॉल्ट वाला जो पोर्शन है दिस इज रन, राइट। दिस मींस अलाउंस इज इक्वल टू 1000 जो है ये स्टेटमेंट रन होगी। अलाउंस एक वेरिएबल है, उसको 1000 वैल्यू असाइन हो जाएगी, राइट। Now if you print this in the text field, it will print 1000 as answer. So answer will be 1000. तो यही यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस के साथ मैच नहीं करती है तो हम डिफॉल्ट वाले पोर्शन को रन करते हैं, ठीक है। तो विल गेट 1000 एज आंसर, राइट। देन इज Sandhya is creating a web page. No, HTML and XML is not in our curriculum, so we'll leave it. हाँ, ये एक क्वेश्चन है। Write a Java statement to declare y as integer variable and then assign the value 30 to the variable y. हम इसको एक एक करके करते हैं। First of all, we need to assign declare a variable y as integer type. So y को integer type declare करना है तो क्या करेंगे? We'll simply write int space y semicolon. This is how we declare int space y semicolon. Int will indicate it's a integer type, and then we'll write name of the variable with the space, and then at the end of every statement we write semicolon. So this is the answer for the first line, right? Remember y is capital, so you have to write in capital only. Next is then assign a value 30 to the variable y. हमें क्या करना है? उस वेरिएबल y को 30 वैल्यू असाइन करनी। असाइन कैसे करते हैं? इक्वल टू के साथ। तो इन नेक्स्ट लाइन विल राइट y इक्वल टू 30 सेमीकोलन, दैट्स इट। y इक्वल टू 30 सेमीकोलन, राइट। मैं आपको आई विल शो यू दिस इन वर्ड फाइल आई हैव टाइप्ड समवेयर। ये रहा। लेट्स टाइप, मैंने किया होगा। First of all, we'll write int capital Y semicolon, first line, I int का I small होगा, remember. Then second is assign a value 30 to Y, so Y is equal to 30 semicolon. इसके बाद तीसरा पार्ट है इसमें that increase the value of Y by 5 and then store the increased value in Z. तो y की वैल्यू में 5 प्लस करो, इंक्रीज करो और उसको z में स्टोर कर दो। सो विल राइट z इज इक्वल टू y प्लस 5, राइट। सो विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ y by 5 एंड देन वी स्टोर इट इनटू z। ये 3 स्टेटमेंट लिखने से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, फाइन। That's it from the side. Let's go back to the question paper. Okay, so ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसमें असाइनमेंट भी हो गई और डिक्लेरेशन भी हो गई। डिक्लेरेशन पहली स्टेटमेंट थी, फिर असाइन कैसे करना है, और इसको हम इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं कि इनिशियल वैल्यू देनी, और ये इंक्रीमेंट कैसे करना है, राइट। इंक्रीमेंट करके उसको किसी वेरिएबल को स्टोर करना है। ये 4 चीज़ें वी हैव डन, राइट। Next is what is MySQL. SQL will do the exercises afterwards. पहले हम सिर्फ जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं।
Okay, when is if else statement preferred over switch statement? Okay, if else statement हम कब प्रेफर करते हैं switch की जगह पे? In short terms we can say we need to differentiate between if else and switch है. if else और switch के बीच में क्या difference है वो हमें specify करना है, right? So see, the major difference, we have two major differences. One is switch के अंदर सिर्फ इंटीजर्स और कैरेक्टर्स, दो तरह की वैल्यूज को हम कंपेयर कर सकते हैं. स्विच स्टेटमेंट जहाँ पे भी लिखेंगे, राइट, जैसे अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल देखा था, वहाँ पे स्विच में जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में या तो इंटीजर वैल्यू होगी या कैरेक्टर वैल्यूज होंगी, सिर्फ दो. इसमें आप फ्लोट वैल्यूज नहीं डाल सकते. फ्लोट मतलब डेसिमल वाली वैल्यूज 3.5 नहीं डाल सकते. ना ही इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हैं. ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी नहीं डाल सकते. सिंगल कैरेक्टर्स और सिंगल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, दिस वी कैन यूज इन स्विच. बट इन केस ऑफ इफ वी कैन डू ऑल. इफ में आप सारी चीजें यूज कर सकते हो. इफ में आप इंटीजर वैल्यूज भी यूज कर सकते हो, डेसिमल वाली फ्लोट वैल्यूज भी लगा सकते हो, कैरेक्टर्स भी कर सकते हैं. फिर उसमें आप बूलियन वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं. बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स. और लास्टली योर string values also we can use, characters also use. So all type of values can be used for comparison. Okay, so this is one difference. The second difference is that in switch we only check the comparisons. switch में सिर्फ हम values को equality check करते हैं. comparisons का मतलब सिर्फ equality comparison check होता है. इसमें greater than less than check नहीं कर सकते switch में. But in case of if else we can do everything. उसमें आप comparisons भी देख सकते हो, सॉरी equality भी देख सकते हो, greater than भी दे सकते हो, smaller than भी दे सकते हो, greater than equal to भी देख सकते हो, smaller than equal to भी देख सकते हो, और not equal to भी देख सकते हो. But switch में सिर्फ equality check होती है. equality कैसे? अगर हम वही एग्जाम्पल दोबारा देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू को इस केस की वैल्यू के साथ मैच करेंगे कि क्या वो इक्वल है, right? So we only check equal values. We don't check greater than 1 or greater than 2. Like that we cannot do it. Okay? So this is the case that we cannot check multiple conditions over here. Right? So this is the second difference. So these two are the major differences between if and switch. अगर आपको equality check के अलावा कुछ और check करना है तो we'll prefer if, or if we want to check the decimal values or string values, then we prefer if. Fine. इसमें एक मैं आपको और चीज बताता हूँ. जैसे I'm using that same example over here. मैंने अभी बात किया कि स्विच में हम लोग, let me share it again. हाँ, in switch we cannot compare greater than and smaller than, right? or we cannot compare inequality, right? So that expression we cannot enter here. And moreover, we cannot use decimals as well as string values here, right? You can only use characters and integer values. Character and integer में क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. I'll just write here so that you can see. Integer में only numbers, right? और float में if you write float में
numbers with decimals, and characters में single quotes में alphabets, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सिंगल कोट लगा है मतलब वो कैरेक्टर है, और स्ट्रिंग टाइप में डबल कोट्स होते हैं और उसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि स्विच में आप इंटीजर्स और कैरेक्टर्स लगा सकते हो, फ्लोट और स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यूज वी कैन नॉट यूज है। Moving on to the next question, what is the purpose of break statement? Now break is very important, as we have done some examples also कि switch case में अगर break नहीं लिखी है तो हमें next statement को भी execute करना पड़ता है। ठीक है, but it is not that break is only used in switch. Break can be used in for also, it can be used in while, do while, right? We can use it anywhere. अब break आने पे होता क्या है कि जब भी किसी प्रोग्राम कोड के अंदर whenever break is encountered, so we simply leave the block of statement and we'll jump out of that block of statement. अब इसका क्या मतलब है? Let's see this. यहाँ पे एक for loop है, right? अब इस for loop में मान लो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के बाद में या if स्टेटमेंट के बाद में break लिखा है, तो क्या होगा? अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो ब्रेक रन होगी। ब्रेक करने का मतलब है कि नीचे वाली जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको छोड़ दो और इस ब्लॉक से बाहर हो जाओ और आइटरेशन बंद कर दो, मतलब फॉर लूप का काम वहाँ खत्म हो जाएगा। ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? ये कर्ली ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड एज वन ब्लॉक। So whenever break comes, we'll leave everything in that particular block and we'll come out of the block. इस ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट्स है नीचे वो एग्जीक्यूट होंगी, फॉर का काम वहाँ खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर फॉर की जगह पे वाइल होता तो वाइल में भी वही होना था कि जहाँ पे ब्रेक आया उस ब्रेक के बाद की जो भी स्टेटमेंट्स है उनको हम छोड़ देंगे और हम वाइल से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट दैट लूप, राइट? तो ब्रेक का यूज क्या है? ब्रेक इज यूज टू exit any kind of iteration loop, or the control jumps from break statement to outside that particular block, right? So this we have to write कि break आने से हम लोग jump करेंगे उस particular location से outside the block and we exit all type of iterations. Iterations का मतलब वही है looping, जो loop चलता रहता है बार बार, हम उसको छोड़ देंगे। Fine. Next is what will be displayed in text field 1 and text field 2 after the following code is executed. ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है जैसा हमने कल किया था। अब यहाँ पे yesterday we have done similar kind of question. इसमें first line में है int t, so we started with the variable t, उसमें integer values आएंगी। another variable s, उसमें भी integer values आएंगी। s is assigned a value 2, so now the value of s is 2, s के अंदर value है 2, तो ये 3 हो गई। उसके बाद विल कम टू दिस लाइन। अब ये लाइन में मल्टीपल चीजें हैं, इसमें एक स्टार भी है, राइट, और एक प्लस प्लस मतलब अपडेशन इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी है और एक डिवाइड भी है। अब एज पर रूल हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी दो चीजें हैं, वन इज योर मल्टीप्लाई, वन इज प्लस प्लस। तो हम पहले प्लस प्लस करते हैं, पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे, या माइनस माइनस होता तो डिक्रीमेंट कर दे। इंक्रीमेंट का मतलब है एस के अंदर 1 प्लस करो। बट कल हमने एक प्रॉब्लम देखी थी कि अगर वेरिएबल के बाद प्लस प्लस है, अगर ये एस प्लस प्लस है, देन हाउ डू वी वर्क? वी फर्स्ट यूज द वैल्यू ऑफ एस, देन whenever s comes again, there we increase the value of s by 1 and use it. पहले हम s की पुरानी वैल्यू को यूज करते हैं
और फिर अगली बार के लिए whenever s comes again, अगली बार के लिए s में 1 प्लस करके फिर यूज करेंगे। ठीक है, ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, पोस्ट मतलब प्लस प्लस बाद में आता है। तो इन दिस केस s की वैल्यू 2 थी, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर यूजिंग 2 over here, so 4 multiply 2 will be 8, तो इसका आंसर आ गया 8, 8 divided by 2 will be 4, तो t की आंसर, t की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, और s जो है वो 2 था, अगली बार जहां पे भी s रहेगा, here we are using s again, यहाँ पे वो इंक्रीज्ड वैल्यू लेगा by 1, so यहाँ पे 3 आंसर होगा। तो here 2 आंसर्स will be printed, फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में 4 आंसर आ गया, सेकंड फील्ड में 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं कि s प्लस प्लस देखा तो उन्होंने s को इंक्रीमेंट करके फिर मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ ये ध्यान रखना है अगर s प्लस प्लस है तो s को यूज करने के बाद इंक्रीमेंट करना है, राइट। सो विल हैव 2 ओवर हियर एंड द नेक्स्ट s विल हैव 3, राइट। यही अगर यहाँ पे प्लस प्लस s होता, प्लस प्लस पहले लिखा होता, s पीछे लिखा होता, तो प्लस प्लस s के केस में we first increase the s value of s by 1, then we use it। उस केस में यहाँ पे 3 हो जाना था, फिर 3 4 12, 12 divided by 2 6 आंसर आता। ठीक है, यहाँ पे तो 3 ही आना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बार आता है, यू मस्ट बी अवेयर विद दिस थिंग। ठीक है, s प्लस प्लस है, पुरानी वैल्यू यूज करो, अगली बार के लिए इंक्रीमेंट करो, और प्लस प्लस s है तो पहले इंक्रीज करके फिर उसको यूज करो। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। द नेक्स्ट इज अबाउट अगेन वी नीड टू प्रिंट द वैल्यूज इन 4 टेक्स्ट फील्ड्स, बट यहाँ पे ऑपरेटर वो फंक्शंस हैं, दिस वी हैव इट कवर्ड, सो विल नॉट डू इट राइट नाउ। ओके, लेट्स सी दिस। रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग व्हाइल लूप। अब यहाँ पे हमें सेम लूप को दोबारा लिखना है, और यहाँ पे फॉर लूप ये लगाया हुआ है, हमें फॉर को व्हाइल में चेंज करना है। तो ये भी एक कैटेगरी है क्वेश्चन की कि आपको एक लूप से दूसरे लूप में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, मैं वर्ड फाइल पे जाता हूँ, वर्ड फाइल पे वी हैव डन दिस। नाउ इफ यू सी हियर, ये आपका वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में लूप है, द सेम। इन सम इज इक्वल टू 0, फॉर लूप इज गिवन, उसके नीचे इफ स्टेटमेंट है, और इफ ट्रू होने पे ये रन होंगी फाइल्स सम वाली, अगर ये इफ वाला फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट रन होगा, यानी कि ये रन होगा। ठीक है, और ये लूप जो है 9, आई की वैल्यू 9 से शुरू हो रहा है और डिक्रीज होता जाएगा जब तक आई की वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, so this loop keeps on doing। now our portion is not how to find out the answer, हमें आउटपुट नहीं निकालना, हमें इसको कन्वर्ट करना है while में। तो जब while में कन्वर्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे फॉर में 3 चीजें हैं, वन इज इनिशियल वैल्यूज, देन इज द कंपैरिजन स्टेटमेंट, द कंडीशन, और थर्ड वन इज अपडेशन। हमें इन तीनों को मूव करना है पास। व्हाट वी डू इज, जो भी इनिशियलाइजेशन यहाँ हो रही है वो फॉर से पहले ले जाओ। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन है ये यहाँ आ जाएगा, फॉर से पहले, फॉर की जगह पे वाइल आ गया, और वाइल के अंदर हम देते हैं ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन, नो सेमीकोलन हैज टू बी रिटन, सेमीकोलन हटाने पड़ेंगे, सेमीकोलन इसके साथ चला जाएगा i इज इक्वल टू 9 के साथ। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट कि अपडेशन जो स्टेटमेंट है वो कहाँ जाएगी। रिमेंबर, अपडेशन स्टेटमेंट ऑलवेज गो बिफोर क्लोजिंग ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट, इस ब्लॉक की क्लोजिंग से पहले जाएगी। तो ये i माइनस माइनस आपका क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले चला जाएगा। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर लूप। फॉर को हम व्हाइल में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। बस इसमें बाकी चीज़ें तो सिंपल है कि अपडेशन जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो लूप से पहले डालनी है। यू कैन राइट इट बिफोर सम, इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं यहाँ से हटा के,
सम से पहले लिख दिया। दिस कैन ऑल्सो बी डन, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो, बट वाइल से पहले होनी चाहिए। फॉर की जगह पे वाइल आ गया, और जो कंडीशन हमने दी वो आपको वाइल के अंदर लिखनी है, और अपडेशन आपको यहाँ से मूव करना है। यही प्रॉब्लम होती है, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। आई माइनस माइनस कहाँ लिखना है, आई माइनस माइनस कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले, यहाँ पे। फाइन। सो इसके बाद आई हैव व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डन वन मोर वेरिएशन। अगर मुझे वाइल को डू वाइल में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। डू वाइल में कुछ नहीं करना होता, ये वाइल कंडीशन को यहाँ से हटाना है और इसको लास्ट में ले आना है ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पे डू लिख देना है। तो ये वाइल की जगह पे डू आ गया और वाइल शिफ्ट हो गया क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद। बस इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, डू वाइल में वाइल के बाद में सेमीकोलन लगता है, और कहीं नहीं लगाते हम, वाइल में भी नहीं लगाते, फॉर में भी नहीं लगाते, सिर्फ डू वाइल के केस में यहाँ सेमीकोलन लगेगा। राइट, तो दिस इज हाउ। इस पे क्वेश्चंस काफी आते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दी है, one is given for loop, you are asked to convert that into while, or you directly are asked to convert it into do while, या do while दिया है उसको while में convert करो, या while को for में करो। ऐसे ये एक दूसरे में conversion कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको while दिया है तो for में convert करना है, तो यहाँ for करके initial value यहाँ डालो, राइट, और इसके बाद सेमीकोलन लगा के अपडेशन स्टेटमेंट यहाँ डालो, राइट। So this we people have to keep in mind. Fine. इसके बाद let's see some more questions. Okay. Another type, find out the errors. Rewrite them by underlining all the corrections made. तो यहाँ पे भी errors find out करनी है और इसको दोबारा से लिखना है। Let's start from the beginning. Int x is equal to 10 semicolon. यहाँ पे कोई गलती नहीं है, int सारा स्मॉल लेटर्स में है, यहाँ पे स्पेस भी है, और x इज इक्वल टू 10 भी ठीक है, और सेमीकोलन भी लगा है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर, राइट। यहाँ पे डू के बाद इन्होंने सेमीकोलन लगा दिया, विच इज रॉन्ग। डू मैंने अभी बताया था कि फॉर के केस में सेमीकोलन नहीं लगता, स्विच के केस के आगे, स्विच के आगे नहीं लगता, इफ के आगे नहीं लगता, यू कैन सी इफ के बाद भी नहीं है, एल्स के बाद भी नहीं है, ऐसे ही आपके डू के बाद भी नहीं लगेगा, वाइल के बाद भी लगेगा। डू वाइल में वाइल के बाद लगता है, यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये डू वाइल स्टेटमेंट है, बट डू के बाद सेमीकोलन नहीं लगता। दिस सेमीकोलन इज basically called as terminating statement. Terminating means it will terminate the thing, it will stop everything here. तो जहाँ सेमीकोलन लग गया वहाँ पे वो स्टेटमेंट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ सेमीकोलन लग गया मतलब आपका डू वाला पोर्शन रन ही नहीं होना, तो आपका लूप खत्म हो गया यहीं पे, राइट। सो दिस सेमीकोलन शुड नॉट कम, राइट। इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करी, और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज x प्लस 5 इज इक्वल टू x। इसमें गलती ये है कि लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होता है जिसको हमने वैल्यू असाइन करनी है। अगर आपने कोई वैल्यू चेंज कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, जो भी एक्सप्रेशन लिख रहे हो वो राइट साइड में लिखते हैं, या उल्टा लिख दिया। तो यहाँ x इज इक्वल टू x प्लस 5 होना चाहिए, राइट, सेमीकोलन विल कम। ये इधर भी y इज इक्वल टू y माइनस 5 होना चाहिए, ये उल्टा लिखा हुआ है, these two statements are wrong, semicolon will come, and after this before while we need to close this curly bracket यहाँ close करनी चाहिए, either it should come here after this statement या इन दोनों के बीच में यहाँ आनी चाहिए, right। तो एक curly bracket missing है। Now we'll check while condition में सब कुछ ठीक है, while small letters में है, और x और y के बीच में ऑपरेटर है, ब्रैकेट भी सही लगी हैं, और सेमीकोलन भी लगाया है, तो ये सही है, ठीक है। Now one more thing I wish to tell you here is that you just check the marks. 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें कम से कम इवन नंबर मिस्टेक्स होंगी, 4 मिस्टेक्स होंगी, जनरली it will be 4, it can be 2 also, right।
तो 4 मिस्टेक्स हैं, आप देख सकते हो। हमारे पास एक मिस्टेक ये हो गई, एक कर्ली ब्रैकेट की, और 2 ये वाली होगी। 4 मिस्टेक्स वी हैव, राइट? सो फ्रॉम दिस marks you can make an idea कि how many mistakes are there, right? So that's it with this question. ये आगे एक क्वेश्चन है जिसमें GUI फॉर्म बना है और उस पर हमने आउटपुट कैसे निकालना है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब मैं will not do this question but I'll just give you some explanation about this कि ये चीज़ है क्या। ये फॉर्म वो है जो हम नेटबीन्स में बनाएंगे, ठीक है? और यही फॉर्म नेटबीन्स में बनता है। दिस इज वन काइंड ऑफ इंटरफेस जो यूजर को हम लोग सॉफ्टवेयर देते हैं ना, वो यूजर इसको यूज करेगा, ठीक है? यहाँ पे देखें तो एक पर्सनल बजट प्लान करके इन्होंने इंटरफेस बनाया है। टोटल इनकम यहाँ मेंशन करेगा यूजर, यहाँ पे वो अपने एक्सपेंसेस मेंशन करेगा, बिल्स का कितना एक्सपेंस हुआ, ग्रोसरीज का कितना हुआ, एंटरटेनमेंट का कितना हुआ, बाकी कितने हुए। और व्हेन द यूजर विल क्लिक ऑन दिस कैलकुलेट बटन, तो यहाँ पे सम ऑफ एक्सपेंसेस हो जाए, जो एक्सपेंसेस यहाँ लिखे चारों उनका सम हो जाए। यहाँ पे ग्रैंड टोटल ऑफ एक्सपेंसेस है। ग्रैंड टोटल का मतलब यहाँ पे कंडीशन भी दी उन्होंने, अगर ये टिक कर दिया तो हॉस्टल की फीस भी ऐड हो जाए, अगर टिक नहीं किया तो हॉस्टल की फीस ना ऐड हो। और ऐड होने के बाद यहाँ पे हमें वो प्रिंट करना है, टोटल वैल्यूज आनी चाहिए। तो ये एक्सपेंसेस को शो करने के लिए। और लास्ट में सेविंग्स कैसे शो होगी, जितना टोटल इनकम है उसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो यहाँ टोटल सेविंग आएगा। तो दिस शुड हैपन ऑटोमेटिकली बिकॉज यही एक सॉफ्टवेयर है जो हमने बनाना है। दिस इज हाउ वी क्रिएट एन एप्लीकेशन फॉर द यूजर। यूजर अपनी वैल्यूज एंटर करे, कैलकुलेट बटन पर क्लिक करे, यहाँ ऑटोमेटिकली आंसर्स आ जाए। ये ऑटोमेटिकली कैसे आएंगे, आपको इसके लिए कोड्स लिखने होंगे, प्रोग्राम्स लिखने होंगे, राइट? So this is our task। ये हमने सीखना है कि ये प्रोग्राम्स कैसे लिखने हैं। फाइन। तो अभी तो हम सिर्फ वर्किंग को समझ रहे हैं, ये बेसिकली फाइनल आउटपुट इज दिस ओनली, ठीक है? तो पहले हम सीखेंगे ये डिजाइन कैसे होगा, उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ये कैसे करते हैं, विल डेफिनेटली डू इट आफ्टरवर्ड्स। पहले हम थोड़ा बेसिक को गो थ्रू कर लें। Now rest is all SQL questions, MySQL questions. That's it from this. Now let's open up some more questions। मैंने कुछ और भी निकाल के रखे हैं, जैसे ये देखो, write the value that will be assigned to the variable C after executing the following statement। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद C वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन होगी। अब यहाँ पे देखें तो we have multiple operators। ऑपरेटर कौन कौन से हैं, minus is also there, multiply, the star is for multiply, multiply is also there, slash is for divide, divide is also there, minus फिर से आ गया, फिर प्लस भी है। तो अब हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करें या पहले डिवाइड करें या पहले माइनस करें, तो कौन सा वाला माइनस पहले करना है, प्लस करना है, कब करना है, तो ये ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, राइट? तो मैं एक बार आपको ना प्रेसिडेंस दिखाई देता हूँ कि ऑर्डर हम क्या फॉलो करते हैं। लेट मी ओपन दैट फाइल आल्सो। दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे ये कैलकुलेशन, जैसी कैलकुलेशन आपको एक ऑर्डर में ही करनी पड़ेंगी। ये रहा, चलो आई शेयर दिस नाउ। Now, this is operator's precedence. Operator's precedence is like, if you see this example over here, y is equal to 6 plus 4 divided by 2. Now, इसमें
कैसे कैलकुलेट करेंगे? नो, मैथ्स का फॉर्मूला हम नहीं लगाते यहाँ पे, बॉडमॉस रूल नहीं लगाते, ऑल्दो से सिमिलर मिलता जुलता रूल है हमारा। जैसे यहाँ पे डिवाइड पहले होगा, प्लस बाद में होगा, तो विल गेट 2, 4 divided by 2 is 2 and 6 plus 2 is 8 आंसर, नॉट 5। अगर हम प्लस पहले करें तो 5 आना चाहिए, बट प्लस नहीं पहले करेंगे, डिवाइड पहले करेंगे। अब ऑर्डर ये है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं, एक दो ब्रैकेट्स हैं, जैसे राउंड भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है, तब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेफ्ट साइड से जो ब्रैकेट पहले आई हम पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड से सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आफ्टर ब्रैकेट्स विल डू दिस। फिर हम अपडेशन करते हैं, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, 1 प्लस करना 1 माइनस करना, और ये भी अगर दोनों एक साथ हैं तो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। फिर न्यू और टाइप ऑपरेटर्स होते हैं, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। फिर इसके बाद एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, स्टार इज टू मल्टीप्लाई, दिस स्लैश इज टू डिवाइड एंड परसेंटेज साइन इज टू फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस होता है रिमाइंडर निकालना, कि अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचता है। तो ये तीनों की प्रेसिडेंस इसके बाद आती है, मतलब वी हैव टू सॉल्व दीस थ्री एंड आफ्टर दीस थ्री वी डू प्लस एंड माइनस। अब ये भी है कि ये तीनों एक साथ अगर आ जाए या दो भी एक साथ आ जाए, जैसे हमारे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हैं, तब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। और अगर प्लस माइनस में भी एक साथ हैं, तो जैसे हमारे क्वेश्चन में है, तो राइट टू लेफ्ट विल फॉलो। लाइकवाइज इसके बाद